Hello everyone. Our topic for today is legal implications of smart contracts in the legal profession. Firstly, we'll start with the introduction. So, as the modern legal world evolves, smart contracts have emerged as a transformative force in defining the future of agreements. What is a smart contract? A smart contract can be defined as a digital agreement that is signed and stored on a blockchain network which executes automatically when the contract's terms and conditions are met. तो ट्रेडिशनली जो कोई भी एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है वो हैंड रिटन हम लिखते थे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ बट as the technology is advancing, we have been introduced to smart contracts. Smart contracts क्या हैं? ये एक digital agreements हैं जो कि which are signed and stored on a blockchain network, which executes automatically when the contract's terms and conditions are met. Then the goal of a smart contract is to simplify business and trade between both anonymous and identified parties, sometimes without the need of a middleman. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एम है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज टू सिंप्लीफाई बिजनेस एंड ट्रेड between persons. Furthermore, it is cost effective as well. It scales down on the formality between the parties the way we had to do in case of traditional methods without compromising upon the authenticity and the credibility. Then from automating payment processes to reshaping legal frameworks, smart contracts are poised to have sweeping implications across the industry. Further, they hold the potential to redefine trust, security, and efficiency of legal transactions. तो लीगल फ्रेमवर्क में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे हैव हेल्प्ड इन ऑटोमेटिंग पेमेंट प्रोसेसेस ऑटोमेटिक पेमेंट्स जो है उसने वो आसान कर दी हैं इंडस्ट्री में बहुत दे हैव रीडिफाइंड ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी एज वेल देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रेडिशनल जो मेथड है ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें नहीं होते so these characteristics include determinism autonomy trustworthiness and efficiency. So firstly we'll discuss determinism. So a smart contract generates the same output from the same inputs ensuring predictability. तो जो है ये जो है बिकॉज वो डिजिटली वर्क कर रहा है तो इसका इनपुट जो है सेम है उससे सेम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगा तो इट इज़ वेरी वेल प्रिडिक्टेबल कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें क्या 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 चीज़ें होंगी so it is predeterminable. Then trustworthiness. Recorded on the blockchain, the terms are irreversible and transparent to all parties. तो क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो है साइन होके स्टोर हो जाता है उससे क्या होगा कि जो टर्म्स हैं वो जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इरिवर्सिबल हो जाती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता एंड फर्दर इट इज ट्रांसपेरेंट टू ऑल द पार्टीज सब पार्टीज को साफ साफ पता होता है कि क्या टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैं thus ensuring trustworthiness. Thirdly, we have autonomy. Once deployed, smart contracts do not require human oversight operating independently. तो ये है कि अगर एक बारी हमने वो इनपुट डाल दिया कि हमें ये टर्म कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है इट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली thus ensuring autonomy. Fourth, we have efficiency. Smart contracts streamline legal processes, reducing the need for intermediaries. So, smart contracts जैसे कि हमने पढ़ा कि it can operate independently, जिसकी वजह से intermediaries की ज़रूरत जो है वो
नहीं पड़ती है। देन बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन लीगल प्रोफेशन। तो लीगल प्रोफेशन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स bring numerous advantages to the legal profession, promising to optimize transactions, mitigate risks, and reshape the way legal services are delivered. With their implementation, the speed of transactional processes is increased, human errors are minimized, and an unparalleled level of security is facilitated through cryptographic practices. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके लीगल प्रोफेशन में जो है, जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, ह्यूमन एरर्स हैं क्योंकि अगर ह्यूमन कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना रहा है, टाइप कर रहा है, तो उसमें एरर्स के बहुत चांसेस होते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट होता है, तो इसलिए ह्यूमन एरर्स आर मिनिमाइज्ड एंड एन अनपैरेलल लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज फैसिलिटेटेड। और एक सिक्योरिटी लेवल जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है कि एक या ज़्यादा पार्टी से हाइड की जाए, बट इसमें क्या है कि वो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो शो होता है। देन they introduce cost savings by reducing the need for intermediaries and enhance compliance by ensuring predefined conditions are inevitably met. तो ये एक कॉस्ट सेविंग तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करने का, क्योंकि इसमें फिर हमें ज़्यादा इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन हम इसको आराम से अपने तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रेम हो, उस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं टू मैच द डिमांड्स ऑफ द डिजिटल एरा। और मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूसेस द रिस्क्स ऑफ एरर्स एंड डिस्प्यूट्स, thus प्रोवाइडिंग एक्यूरेसी। तो जितना, क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के साथ ही हो रहा है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से रिस्क जो है कम होंगे, डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम होंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट बनेगा। देन सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैम्परिंग एंड फ्रॉड। तो उसके साथ ही एक सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, जिसके थ्रू ये स्टोर, जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टोर होते हैं उस सॉफ्टवेयर में, तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैम्परिंग एंड फ्रॉड एज वेल, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास ऐसा कोई सिक्योरिटी सिस्टम इतना नहीं होता है, और उसमें टैम्परिंग के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। देन चैलेंजेस एंड रिस्क्स ऑफ यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, बट एट द सेम टाइम फिर कुछ चैलेंजेस और रिस्क्स भी आ जाते हैं। Despite their numerous benefits, smart contracts also come with their own set of challenges and risks. Understanding these is crucial to mitigate potential impact. तो पहला चैलेंज आता है हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस सच एज कोड बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज कैन हैव सिवियर consequences. They present risk that require thorough evaluation and testing. तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें बग्स के, कोड बग्स के का होना जो है वो बहुत एक कॉमन सी बात होती है, तो उसकी वजह से जो है उसकी एफिशिएंसी जो है थोड़ी सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वो इफेक्ट हो जाती है, एंड इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस जो है हो सकते हैं। Second, there is also a lack of legal precedent on smart contract disputes, creating uncertainties around enforceability and interpretation. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके जो है कोर्ट्स में केसेस बहुत कम आते हैं, कोर्ट्स के डिसीजंस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अपॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से जो है देयर आर अनसर्टेनिटीज अराउंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली ऑन इन्फोर्सिबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन, कि किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इन्फोर्स होंगे और किस तरीके से उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको इंटरप्रेट किया जाएगा।
तो क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई डिसाइडेड केसेस ही बहुत कम है, तो इसके अराउंड बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं. And considering that smart contracts are irrevocable, any flaw in the code can result in irreversible consequences. तो क्योंकि ये जो है कि इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि एक बार ही जो इनपुट डाल दिया उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट जो है वो जनरेट होगा. तो अगर वो कोड में ही कोई फ्लॉ, अगर कोई एरर जो है वो आप हो गया, तो उसकी वजह से जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं. ऑल्सो कई केसेस में क्या हो सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट रिक्वायर्स ह्यूमन जजमेंट. तो वो जो है कंप्यूटर जो है वो चीज़ें नहीं कर सकता जो ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन माइंड जो है वो कर सकता है. इसकी वजह से we have to ensure that smart contracts are precise and they foresee their creation as well. Then inflexibility to adapt to unforeseen circumstances may hinder nuanced legal decision making. So कई बारी क्या है कि क्योंकि ये irreversible है, तो उसकी वजह से ये इनफ्लेक्सिबल भी बन जाता है, रिजिड हो जा एक रिजिड सॉफ्टवेयर है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है टू अडेप्ट टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. कई बार कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस जो है वो क्रिएट हो सकता है जिसके अकॉर्डिंगली जो वो सॉफ्टवेयर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एज पर द रिक्वायरमेंट वो बन ही नहीं पाएगा. So this is another risk of using smart contracts. Next, we will discuss legal implications of smart contracts. So as smart contracts become integrated into existing legal frameworks, they raise questions about interpretation of the terms encoded in software, assignment of liability for code errors, and execution of agreements crossing international jurisdictions. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जो है कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी आती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाएगा. अगर उसमें कोई एरर, कोड का कोई एरर आ जाता है तो उसमें किसकी लाइबिलिटी बनेगी उस केस में. देन अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने बनाना है, तो उसकी एग्जीक्यूशन भी डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना लॉ है रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स. And the legal professionals must now consider how traditional principles of contract law apply to agreements that are dynamic and self-executing. तो अभी जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के वो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स पर ही अप्लाई नहीं होना है, उसको अभी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी अप्लाई होना है, which calls for a new breed of legal experts who are proficient in both law and technology. तो सिर्फ लॉ की जानकारी ही आज के टाइम में होनी जो इनफ नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी का भी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा some of the legal implications of smart contracts are contract interpretation. How to interpret the terms of the smart contracts in line with traditional contract law principles. इस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स यूज करके जो है वो इंटरप्रेट किया जाएगा. देन अगर कोई भी बग्स हैं या कोड एरर है तो उसमें अगर कोई इस एरर की वजह से जो लाइबिलिटी है वो किसकी होगी उसमें हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. देन assessing how smart contracts operate across different legal systems and jurisdictions. किस तरीके से इंटरनेशनली जो है ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्रेमवर्क जो है वो गवर्न होगा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं. देन सॉल्यूशंस.
to legal implications posed by smart contracts. So we have discussed कि क्या क्या problems जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में हम जो है फेस करते हैं। अभी उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर क्या उनकी रेमेडीज हो सकती हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है दैट इज क्लैरिटी इन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, इंश्योरिंग प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू मिनिमाइज इंटरप्रिटेशन इश्यूज। तो बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनकर आएगा तो उसमें इंटरप्रिटेशन के जो इश्यूज हैं वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएंगे। देन अडेप्टेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स, वर्किंग टुवर्ड्स अपडेटिंग एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स टू अकोमोडेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारे जो हर एक कंट्री के और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो कोलैबोरेशन के साथ हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, दे आर वेल अपडेटेड टू द aspects of smart contracts. Then continuous legal education. लीगल प्रोफेशनल्स जो हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, especially in blockchain and smart contract technologies to effectively navigate their legal implications. तो जो भी lawyers हैं, advocates हैं, judges हैं, कोई भी legal profession में कोई भी इंसान है, उसको इन चीज़ों की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए along with the knowledge of law. तो आज के ज़माने में just the knowledge of law is not enough. आपको बहुत सारी जो है और भी चीज़ों की जो नॉलेज है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स की नॉलेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन इन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। तो collaborating with technologists and blockchain experts to bridge the gap between legal expertise and technological understanding, ensuring a comprehensive approach. तो जो है जो टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं और ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ में आकर जो है वो दे हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द लीगल एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है ये गैप कम होगा तो दोनों के पास एक दूसरे के जो डिसिप्लिन्स हैं उसकी नॉलेज आएगी, तो जिसकी वजह से जो है जो कोई भी रिस्क्स हैं, चैलेंजेस हैं जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में फेस करते हैं तो वो कम हो जाएंगे। देन प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस, ensuring that smart contracts adhere to privacy and data protection regulations addressing concerns relating to storage and processing of personal information. तो ये इंश्योर करना कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे फॉलो द guidelines or the rules relating to privacy and data protection so that कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, it is well protected. Lastly, we have conclusion. In conclusion, smart contracts symbolize an emerging paradigm within the legal profession that fuses legal acumen with cutting-edge technology. They propose a renaissance in legal practice but also require cautious navigation through their complexities and implications. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो है हमारा लीगल फ्रेमवर्क भी एडवांस हो रहा है, जिसके कारण जो है जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं अभी एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो ये एक रिनाइसा हो गया है, एक प्रॉपर जो है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम जो है वो शिफ्ट हो गए हैं लीगल प्रैक्टिस के केस में। बट इसके साथ साथ वी हैव टू रिमेन conscious and cautious of the complexities and implications that are posed by these technological advancements, especially in the case of smart contracts. As we move forward, the legal profession must brace for this inevitable technological integration, preparing to manage, arbitrate, and innovate
with the dynamic framework that smart contracts introduce. The journey has just begun, and its myriad pathways are as promising as they are challenging. तो लीगल प्रोफेशन जो है उसको तैयार रहना चाहिए for the technological integration between and um, law and technology, ताकि वो इस तरीके से प्रिपेयर रहे कि वो जो है वो मैनेज कर सके डायनामिक फ्रेमवर्क दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस. द जर्नी हैज जस्ट बिगन, एंड जो भी इसके आगे रास्ते हैं इस रिलेटेड, they are promising as well as challenging. Thank you so much. That's it for today.